Assalamu alaikum, my name is Asif and we are here to discuss about the second chapter of 9th class physics kinematics. Today we discuss about rest and motion and its different types. So we start. What is rest? First we defined as a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. यानी अगर कोई जिस्म इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करता तो वो रेस्ट की हालत में है. We can see the different millions of examples around us. For example, ये चेयर आप देखें, ये कुर्सी जिस पे मैं बैठा हूँ, ये अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रही. ये रेस्ट की एग्जाम्पल है. So we understand, I again repeat the definition of rest. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding. यानी अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील कर रहा हो तो ये एग्जाम्पल होगी मोशन की. स्टूडेंट, यू कैन सी दिस कार इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू surrounding, so this car is in rest, is the example of the rest. So you can see this car is moving, this car is changing its position with respect to surrounding. Oh, you can see this insect is changing its position with respect to surrounding, so this insect is in motion. This is the example of motion. Students, we learn the definition of rest and motion and also see its different examples. So we are here to now discuss the different types of motion. So there are three types of motion. Number one, translatory motion. Number two, vibratory motion. And number three, rotatory motion. So let me start from translatory motion. In translatory motion, a body moves in a line without any rotation. Line may be straight or curved. I again repeat the definition. In translatory motion, a body moves in a line without any rotation. The line may be straight or curved. Two conditions must be satisfied for translatory motion. Number one, body moves in a line, and number two, body moves without any rotation. जी मैंने आपको ये बताया कि ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी जिस्म एक लाइन में हरकत करता हुआ है. ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी जिस्म बग़ैर घूमे हुए एक लाइन में हरकत करता है. ये लाइन ख़त मुस्तकीम भी हो सकती है और दायरा नुमा भी हो सकती है. तो ये थी वो डेफिनेशन जो हमने देखी ट्रांसलेटरी मोशन की. आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. Students, you learn the definition of translatory motion and we are here to explain the examples of translatory motion. A car moving on a level road is the example of translatory motion. You can see this. But remember, a car moving on a straight line but not on a level road, not on the level road, is not the example of translatory motion. The car moving on a straight line on level road is the example of translatory motion. And an aeroplane moving in a straight line is the example of translatory motion. And let we see this Ferris wheel. This Ferris wheel is the example of translatory motion. The rider of the Ferris wheel is not rotating without any rotation in a circular path moving. So it's the example of translatory motion. मैंने आपको ये बताया कि ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें कार जो कि एक सीधी लाइन में हरकत कर रही हो लेकिन लेवल रोड पे मूव कर रही हो तो वो एग्जांपल होगी ट्रांसलेटरी मोशन की. बिल्कुल इसी तरह से एक एरोप्लेन जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो वो एग्जांपल होगी ट्रांसलेटर मोशन की. तो फेरस व्हील का जो राइडर है वो सर्कुलर पाथ में बगैर घूमे हुए यानी विदाउट एनी रोटेशन वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये भी एक एग्जांपल है ट्रांसलेटरी मोशन की. स्टूडेंट, आपने ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल देखी तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर डिवाइड इन थ्री टाइप्स. नंबर वन, लीनियर मोशन. नंबर टू, circular motion. Number three, random motion. If body move in a straight line, this type of translatory motion is
linear motion. And if body moves in a circular path, this type of translative motion is circular motion. यानी अगर कोई जिसम खत मुस्तकीम में हरकत कर रहा हो तो इसकी इस हरकत को इस किस्म की ट्रांसलेटिव मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे, और अगर कोई जिसम दायरा नुमा रास्ते में हरकत कर रहा हो तो इसकी हम जो ट्रांसलेटिव मोशन है ये सर्कुलर मोशन कहलाएगी। आइए इसकी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। Student, we are here to describe the example of linear motion. Ball falling downward is the example of linear motion. A car moving on level road in a straight line is the example of linear motion. Toy train moving in a circular path is the example of circular motion. एक अगर हम पत्थर लें, उसको अगर रस्सी के साथ बांध दें और उसको अगर हम एक सर्कल में घुमाएं तो वो एग्जाम्पल होगा सर्कुलर मोशन की। सो वी सी द डिफरेंट एग्जाम्पल एंड आई वांट टू एक्सप्लेन जस्ट अ पॉइंट। इफ द कार ऑन इन अ स्ट्रेट लाइन मूविंग ऑन लेवल रोड विल बी द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन, बट ऑन द रफ रोड will not be the example of linear motion. Student, we see the example of linear and circular motion. Now we are here to discuss the random motion. The disorder or irregular motion of a body is known as random motion. I again repeat, the disorder or irregular motion of a body is called random motion. यानी अगर कोई जिसम बेतरतीब अंदाज में हरकत कर रहा हो तो इसकी इस हरकत को हम इस किस्म की ये जो टाइप्स है हरकत की या मोशन की जो टाइप है वो रैंडम मोशन कहलाती है। द मोशन ऑफ इंसेक्ट, बर्ड, ब्रोनियन मूवमेंट, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इज द एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। आइए इसकी एग्जांपल को हम मजीद तफसील से समझते हैं। द मोशन ऑफ बटरफ्लाई इज द एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन. The motion of birds and insect is also the example of random motion. Smoke and dust particle is the example of random motion. Brownian movement is also the example of random motion. So we have complete translative motion and its three types. So let we start from the second type of motion. Let we go. So we discussed the first type of translative motion with its three types. Now we are going to discuss the second type of motion, rotatory motion. The spinning motion of a body about its axis is called rotatory motion. यानी किसी भी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हुए हरकत करना रोटेटरी मोशन कहलाता है। अब ये एक्सिस क्या है? व्हाट इज एक्सिस? एन एक्सिस इज ए लाइन अराउंड विच ए बॉडी रोटेट, यानी एक्सिस एक लाइन है जिसके गिर्द वो जिस्म घूम रहा होता है। ये रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन है। तो ये मैंने बताया एक्सिस के बारे में। आइए इसकी एग्जांपल को देखते हैं। We learn the definition of rotatory motion and we are here to discuss the examples of rotatory motion. तो रोटेटरी मोशन की एक एग्जांपल है कि जो टॉप जो लट्टू है उसकी जो मोशन है वो एग्जांपल होगी रोटेटरी मोशन की। क्यों? क्योंकि लट्टू अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। ये एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की। इसी तरह एक बॉल है फुटबॉल, उसको अगर हम घुमाकर फिंगर के ऊपर रख देते हैं, अब ये जो इसकी मोशन है ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है और ये भी एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की। इसी तरह गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो भी एक एक्सिस के गिर्द मूव करता है, तो वो एग्जांपल होगा रोटेटरी मोशन की। तो हमने होप रोटेटरी मोशन की डिफरेंट एग्जांपल को समझा। जी, मैं यहाँ पर अब आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहूँगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन and rotatory motion? In circular motion, the point around which a body goes round is outside the body, and in rotatory motion, the point about which a body moves is passing through the body or inside the body. यानी सर्कुलर मोशन में होता है कि वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूम रहा होता है वो जिस्म से बाहर होता है, जिस्म के अंदर मौजूद नहीं होता, ना ही उसकी लाइन जिस्म में से गुजर रही होती है, सर्कुलर मोशन होती है। लेकिन जो रोटेटरी मोशन है इसमें वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूम रहा है, जिसकी मिसाल ज़मीन जो अपने ज्योमेट्रिकल एक्सिस के गिर्द घूम रही है, वो पॉइंट उस जिस्म के अंदर से पास करता है, यानी वो पॉइंट जिस्म के अंदर से वो लाइन उसकी गुजरती है। तो ये डिफरेंस है जिसको हम आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। वी आर हेयर टू एक्सप्लेन द डिफरेंस between the circular motion and
रोटेटरी मोशन. द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, ये सर्कुलर मोशन की मिसाल है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट, वो पॉइंट जिसके गिर्द ये ज़मीन घूम रही है वो इस ज़मीन में से पास नहीं हो रहा. और इसकी दूसरी मिसाल इस तरह है कि जो ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, द मोशन ऑफ द अर्थ स्पाइनिंग अराउंड इट एक्सिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन. ये देखें, ये ज़मीन आप देख रहे हैं, ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात बन रहे हैं. ये एग्जाम्पल होगी रोटेटरी मोशन की. अब इसमें जो इसका लाइन ऑफ यानी जो लाइन इसका जो एक्सिस है, यानी लाइन ऑफ रोटेशन है, वो बिल्कुल इसमें इसकी जिस्म के अंदर से पास करता है. तो ये डिफरेंस था जिसको हमने समझा. Now we are here to discuss the last type of motion, vibratory motion. To and fro motion of a body about its main position is called vibratory motion. यानी अगर कोई जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करे और बार बार अपनी हरकत को दोहराए, तो इस किस्म की मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. इसकी बहुत सी एग्जांपल है, जैसे एक पेंडुलम की हम मिसाल दे सकते हैं. पेंडुलम की मोशन जो है वो इस वाइब्रेटरी मोशन की एक मिसाल है. इसी तरह सीसा पे जो बच्चे झूल रहे होते हैं वो भी एक एग्जांपल है. स्टूडेंट, वी डिस्कस द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. जो बच्चे पींग ले रहे होते हैं, जो आपने स्विंग्स देखी है, उसकी जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन की मिसाल है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे गिर्द मूवमेंट कर रहा है और बार बार अपनी हरकत को दोहरा रहा है. तो ये एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की. इसी तरीके से सीसा जो बच्चे जिस पे खेलते हैं वो भी एक एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की. तो ये कुछ वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल्स हमने देखी हैं. तो इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. आइए हम अब आगे चलते हैं.